So basically we are going to start with the module number 1 today, that is a cost control accounts. Now before going to this, let's first have a short introduction, like हम costing क्यों करते हैं, why we study all the aspects of our cost accounting. Because in the cost accounting, what we do, it is nothing but it is a process of your accounting where you find it out the cost. What is a cost? कि कितना हमने expenditure किया है. It is amount of the expenditure which has been done. Either it can be a actual expenditure or it can be a notional expenditure. But हमने कितना amount of expenditure किया है, which we have incurred to get something, that is known as a cost. Now जो हमारा ये cost accounting का जो ये process है, from where it begins, obviously it gets begin with ascertaining of the cost. हम सबसे पहले क्या identify करना चाहते हैं, हमें ये identify करना होता है कि हमारा cost कितना हुआ है, हमने कितने expenditure को incurred किया है. And ultimately when it starts with knowing of the cost, but when it ends, ये process ultimately end कहाँ पर हो जाता है? It ends by establishing a relationship. Now when I say establishing a relationship, ये establish किसके बीच में कर रहा है relationship? It established the relationship between a cost and the certain cost centers. Now we have detail में हमने semester 5 में पढ़ा था what are the costs, what is the cost centers, what are the cost units as well. Still एक brush up कर देते हैं. कॉस्ट सेंटर्स क्या थे, लोकेशंस बोल सकते हो आप उसको, कोई पर्सन्स या तो कोई आइटम्स ऑफ द इक्विपमेंट्स और अ ग्रुप ऑफ ऑल दिस थिंग्स फॉर विच हम वी असर्टेन द कॉस्ट. ये इसके लिए हम असर्टेन करते हैं, और यही असर्टेन के लिए वी यूज दिस पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, बिकॉज आपका कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ना भी नहीं चाहिए. आपका ज्यादा कॉस्ट होगा तो आप कम प्रॉफिट मिलेगा आपको. So here you try to control it up. There is what was a cost unit. Cost unit was nothing but it is a unit of a quantity of a product. कितनी quantity है of a services you can say, or of a time, combination of all this. जिसमें आप cost को express करते हो, जिसमें आप cost को ascertain करते हो, that is your cost unit. तो जो भी हमारा ये scope है वो किससे start होता है? It start with identifying of the cost and it ends with a ultimately with finding out the relation between a cost center, between a cost and the cost centers, or you can say the cost units. Now when I say about the cost accounting class, we have basically a two systems of the cost accounting. एक तो हमारा क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो एक अलग से होता है. बट बेसिकली जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करती हूँ तो वी हैव अ टू सिस्टम्स ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग. नाउ व्हिच आर दोस टू सिस्टम्स? One is integrated, or you can say integral accounting system. Again, I am giving you the second word as well. Integrated or integral accounting system. Second one is non-integrated accounting system. So basically your accounting system is divided into this accounting. One is integrated, another one is non-integrated. सो बेसिकली हम जो ये वाला चैप्टर है उसमें हम नॉन इंटीग्रेटेड के बारे में ज्यादा पढ़ने वाले. बट फर्स्ट वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट अ इंटीग्रेटेड, सो दैट आप कंपेयर कर सको कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू. नाउ व्हेन आई से अबाउट द, सबसे पहले ना हम क्लास इंटीग्रेटेड के बारे में एक बार सिर्फ विल डिस्कस लाइक व्हाट इज इंटीग्रेटेड. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑन दिस. सो हम यहाँ पर सी व्हेन आई से कि हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम सबसे पहले द बेसिक स्टेप क्या है फॉर प्रिपेयरिंग दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? यू फर्स्ट आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस. आप आइडेंटिफाई करते हो ना पहले तो ट्रांजैक्शंस. इट कैन बी अ बिजनेस ट्रांजैक्शन या तो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होंगे. बिजनेस रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है वो ही सिर्फ जॉट डाउन करोगे बिजनेस में, करेक्ट? After identifying, what you do, you journalize it, then you post it into the ledger. Ledger के बाद trial balance बनता है, and from the trial balance you prepare a balance sheet. So what you do over here, you prepare only a one set of the accounts over here, और वो ही set में आप सब कुछ record कर लेते हो, correct? तो when
you combine it up when your cost account and your financial book, your cost book and the financial book, when they are kept together, then it is known as integrated accounting system. Again, I am repeating, when your cost book and the financial accounts, okay, when they both are combined together and recorded in one book, or you can say when it is kept together, then it will be known as a integrated or integral accounting system. Now we will study the meaning of non-integral. पहले हम सिर्फ एक बेसिक रफ आइडिया ले रहे कि व्हाट इज दिस. ठीक है, यहाँ पे जैसे इंटीग्रल में हम कंबाइन करते हैं, सब कुछ एक ही जगह पर रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट भी होता है ना इन इंटीग्रल में, वी गेट ओनली वन नेट प्रॉफिट फ्रॉम बोथ ऑफ द बुक्स, कॉस्ट बुक एंड द फाइनेंशियल बुक से जो भी हमारे कंबाइन होके बनेगा वो हमें सिर्फ क्या मिलने वाला है, नेट प्रॉफिट हमने मिलने वाला. बट इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, your financial books and your cost books are not kept together. ठीक है, दे आर नॉट कंबाइंड, दे आर नॉट केप्ट टुगेदर, दे आर सेपरेटेड. दोनों बुक्स को यहाँ पर हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं. कॉस्ट बुक्स का अलग से हम बनाएंगे, उसमें जितने भी कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे वो कॉस्ट बुक में लिखेंगे, फाइनेंशियल रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो फाइनेंस बुक में लिखेंगे. So here your cost accounts will be distinct from your financial accounts, and over here the two set of the accounts will be kept. ठीक है, कॉस्ट बुक अलग से, फाइनेंस बुक अलग से. So when there will be a two set of the books which will be kept, then it will be known as non-integrated system. तो यहाँ पर आप दोनों बुक्स एक साथ बनाते हो या और एक साथ रखते हो. यहाँ पर आप क्या करते हो, दोनों बुक्स को, कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक को अलग से रिकॉर्ड करते हो. You kept it separately. ठीक है, they are not combined, then it will be known as non-integral. तो देखो हमने सेमेस्टर 5 में किया था सिर्फ कॉस्ट बुक के लिए. तो when you say about a cost book, हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, हम we prepare a cost sheet सबसे फर्स्ट, करेक्ट. वहां पर हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन में, इंटीग्रल में. वेयर इज नॉन इंटीग्रल में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम पहले कॉस्ट शीट बनाते हैं. देन फ्रॉम द कॉस्ट शीट हम क्या करते हैं, वी जर्नलाइज द एंट्रीज. बेस्ड ऑन दैट कॉस्ट शीट वी जर्नलाइज द एंट्रीज. फिर हम वो कॉस्ट शीट के ऊपर से हम लेजर्स बनाते हैं, एंड देन वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल योर बैलेंस शीट. सो ऑब्वियसली जो भी आपका अभी आप दो अलग अलग सेट ऑफ बुक्स बना रहे हो, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट बुक अलग से बना रहे हो, फाइनेंशियल बुक अलग से बना रहे हो. सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आपका जो भी फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा और जो भी आपका कॉस्ट प्रॉफिट होगा वो दोनों टैली नहीं होगा. Obviously it won't get tally ना, because there are certain of the items which you are not recording in the cash book. जैसे हमने कॉस्ट शीट में पढ़ा था ना कि हम कितने सारे फाइनेंस रिलेटेड आइटम्स नहीं रिकॉर्ड करते यहाँ पर. if say for example if you are paying any of the fees, तो आप फिर आप इंटरेस्ट है, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट है, आप शेयर्स खरीद रहे हो. So then if you are making any of the other expenses, so that you are not writing it down in the cost books. तो फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस आप कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड कर रहे होंगे ही नहीं. और ऐसे भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे जो सिर्फ आप फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट बुक में उसका कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड करोगे बट फाइनेंशियल इसमें नहीं करोगे. जैसे नोशनल प्रॉफिट हो गया, वो सिर्फ कॉस्ट बुक में आएगा, वो फाइनेंशियल बुक में आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे. ठीक है, फाइनेंशियल बुक्स में आप WIP को अलग से, फिनिश्ड गुड्स को मतलब रॉ मटेरियल को बाइफरकेट नहीं करोगे, जबकि इन द कॉस्ट यू आर गोइंग टू बाइफरकेट इट अप. So there are the certain items which are not going to record it in the cost book. There are certain of the items which you are not going to record in the financial books. So दोनों का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा. और हमने ये वाला देखो, इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड दिस इन द सेमेस्टर 5 मॉड्यूल नंबर 2, योर रिकंसिलिएशन. देखो जब भी हमारा कॉस्टिंग प्रॉफिट और द फाइनेंशियल प्रॉफिट दोनों अलग था, तो हम क्या करते थे, वहां पर हम रिकंसिलिएशन बनाते थे. वी यूज्ड टू रिकंसाइल इट अप, एंड रिकंसाइल में हम फाइंड आउट करते. देखो इफ यू रिमेंबर वी रिकॉर्ड दैट दिस प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक. जब हम कॉस्ट बुक से स्टार्ट करते तो वी अराइव एट अ प्रॉफिट और अ लॉस एज पर द फाइनेंशियल बुक्स. अगर हम फाइनेंशियल बुक से स्टार्ट करते थे तो हमें मिलता था कॉस्ट बुक का प्रॉफिट और अ लॉस. डू यू रिमेंबर? तो ये हम क्यों रिकंसिलिएशन क्यों करते थे, क्योंकि हमारा कॉस्टिंग प्रॉफिट और जो फाइनेंशियल प्रॉफिट था वो डिफरेंट था. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम उसको रिकंसाइल करते थे.
तो आपका रिकंसिलिएशन कब पॉसिबल है? जब आप नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम बनाते हो। क्लियर? सो व्हेन आई गो इन द नटशेल, हम पूरा एक बार अच्छे से अब डेफिनेशंस को रीड करते हैं तो इट विल गेट मोर क्लियर. सो लेट्स गो अहेड. In the non-integral accounting system, where the separate accounts book, अब कौन सी account books? Your cost and the financial books. So when they are maintained separately, ओके दोनों अलग से बनेगा. कॉस्ट का बुक्स अलग से बनेगा. आप ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंटेंट को वहां पर यूटिलाइज करोगे. फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका अलग से बनेगा. आपकी ऑडिट्स भी कितनी होगी? 2 ऑडिट होगी. कॉस्ट बुक्स की अलग, फाइनेंशियल बुक्स की अलग. तो जहां पर आप 2 सेपरेट बुक्स बनाते हो वो आपको बोलते हो उसको नॉन इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम. Or the another name of a non-integrated accounting system is cost control accounts. और हमारा चैप्टर का नाम भी क्या है? Cost control accounts. So in this chapter, basically we are going to study more in the detail about non-integral accounting system, or you can say non-integrated accounting system. ठीक है? 2 set of the accounts book are kept in the non-integral accounting system. One for recording the cost transaction, that is a cost book, and another for recording all your financial transaction, that is a financial books. Obviously, आप जो भी दोनों बुक्स में आप कौन से सिस्टम यूज करोगे? डबल एंट्री बुक सिस्टम, बिकॉज डेबिट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट. तो आपको कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ पर फॉलो करना है? यू हैव टू फॉलो द डबल एंट्री system over here while recording the transactions. And what is integrated then? Integral system is a system of accounting under which only one set of the books of account is maintained to record both the transaction. आप cost और finance दोनों एक ही book में record करोगे. There is no separate books which are been prepared. So integrated का मतलब ही क्या होता है? Combine, joint books you are going to prepare it up. There is no need for the preparing the cost ledger or any of the cost ledger controls account. आपको कोई भी ऐसे अकाउंट्स बनाने की या तो कॉस्ट लेजर बनाने की जरूरत नहीं है. Both of the set of the books are been kept under the one system, then it is known as integral system. अब when I say कि दोनों में से कौन सा बेटर है, so if you ask me, I will be saying that non-integral accounting system is quite better. There are certain of the disadvantages of the non-integral, but when you see, ये quite better system है. अब क्यों better system है? आपको यहाँ से 2 प्रॉफिट्स भी अलग से आपको मिल सकता है. आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि मेरा कॉस्ट का प्रॉफिट कितना है, मेरा फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कितना है. आपको अगर चाहिए तो आप इजीली रिकंसाइल भी तो कर सकते हो. यू कैन रिकंसाइल योर कैश बुक एंड द फाइनेंशियल बुक इजीली, क्योंकि ऑडिटर का वर्क इसके वजह से क्या हो जाएगा? क्वाइट इजी हो जाएगा. एंड अब अगर सी इफ आई हैव अ व्हेन आई एम ऑपरेटिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, जब मैं मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस आई एम ऑपरेटिंग एट अ लार्ज स्केल, देयर इंटीग्रेटेड बुक्स आर नॉट एडवाइजेबल आल्सो टू कीप. फिर वहां पर तो आपको नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग ही फॉलो करना पड़ेगा. सो यस, यू ऑल आर करेक्ट कि हमारे जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे. ऑब्वियसली द एक्सपेंसेस विल गेट इंक्रीज बिकॉज आप 2 सेट्स ऑफ बुक्स बना रहे हो. तो आप 2 स्टाफ अलग से रिकॉर्ड करोगे, वो 2 स्टाफ को आपको सैलरी पे करना पड़ेगा. देन आपको स्टेशनरी भी डबल जाएगी. आपको कॉस्ट ऑडिट अलग से करना पड़ेगा, फाइनेंशियल ऑडिट्स अलग से करना पड़ेगा. सो यस, द कॉस्ट विल गेट इंक्रीज, बट स्टिल वी हैव अ मोर ऑफ द बेनिफिट्स व्हेन वी कंपेयर इट विद द इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम. बेनिफिट्स भी क्या है? ज्यादा है. ठीक है. Now one more important point which you have to study over here is, in the case of non-integrated system, there are no personal accounts or no real accounts are prepared. आप मुझे बताओ, you just recall your cost sheet. ठीक है, wait, I'm just showing you the cost sheet as well. Just recall your cost sheet once. Just tell me over here, are you any recording any personal or a real account? क्या आप पूरी कॉस्ट शीट एक बार ग्लैंस करो, देखो क्या आप डेटर्स को कहीं पर रिकॉर्ड किया है आपने? कहीं पर भी क्रेडिटर्स रिकॉर्ड हुए हैं? सी, जस्ट फाइंड इट आउट. डेटर्स, क्रेडिटर्स,
कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुआ है कहीं पर, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, सी होल ऑफ द कॉस्ट शीट वंस, obviously it's not there. So that is why I was telling you na, there are certain of the things which are not recorded in the cost account, there are certain of the things which are not recorded in the financial accounts. So यहाँ पर when I say about this cost accounting, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, when I say about sorry non-integral this system, in that you are not any of the no personal or a real accounts are prepared. यहाँ पर आप ना तो पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो ना तो रियल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो. तो अभी आप बोलोगे कि मैम आपने हमें अभी पढ़ाया कि आपको अगर डबल बुक एंट्री सिस्टम करना है तो अगर हम पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं करते तो फिर हमारा ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का ये जो लॉजिक है वो कैसे इसमें एप्लीकेबल होगा. यस, वेयर यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर, आप यहाँ पर डेटर्स क्रेडिटर्स कैश को यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं लिखोगे ना, तो इसके लिए आप अपना अलग से एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. सो आप जो भी आपके कैश ट्रांजैक्शंस है, जो भी आपके डेटर्स या तो क्रेडिटर्स एट लीस्ट पर्सनल अकाउंट्स रिलेटेड योर ट्रांजैक्शंस आर देयर, वो वाले जो भी आपके अकाउंट्स का नाम होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. सो यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट है वो रिप्लेसमेंट कौन देता है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. किसका रिप्लेसमेंट, ऑल योर पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स का. आप मुझे बताओ कॉस्ट शीट में हम क्या प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर को रिकॉर्ड करते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स बिल्स पेबल को रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्वियसली नो. सो अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शंस आया तो देयर इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ अकाउंट व्हिच विल बी नोन एज अ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. वी विल सी दिस मोर इनटू द डिटेल, डोंट वरी अबाउट इट. बट इतना समझ में आया. Yes. We did this integral, non-integral, where the books are kept together, where the books are kept separately. Both of your, when I say about the books, कौन सी books, कौन से accounts, financial accounts and the cost accounts. Now, as I told you, okay, in the cost there are no personal accounts which are been kept because of the cost account do not have any of the relationship with the outsider, because basically over here हमें ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका कॉस्ट कितना है. So there is no relationship between the with the outsiders. रियल अकाउंट में भी हम सिर्फ बेसिकली जब कॉस्टिंग आता है तो हम सिर्फ कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं. वी ओनली एंड ओनली रिकॉर्ड ऑल योर स्टॉक्स. स्टोर्स, यू कैन, स्टॉक का दूसरा नाम होता है स्टोर्स एज वेल, बिकॉज आप यहाँ पर कॉस्टिंग में रॉ मटेरियल तो बाइफर्केट करते हो ना, स्टोर्स को बाइफर्केट करते हो इन द रॉ मटेरियल, WIP एंड द फिनिश गुड्स. तो जब हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो हमारा जो कॉस्टिंग में जो मोर एम्फेसिस होता है, द मोर एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द नॉमिनल अकाउंट. हम ज्यादा फोकस किसके ऊपर देते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स पर देते हैं. वी एनालाइज ओवर ईयर कि हमारे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हमें कितनी इधर इनकम्स मिलती है, बट बेसिक more emphasizes are placed on the nominal accounts. So I can just say that from this we can just interpret it कि we are over here more concerned for your impersonal accounts. ठीक है, हम हमारे जो भी इम्पर्सनल अकाउंट्स, अब रियल अकाउंट वैसे मैंने बोला कि नहीं आता है, बट रियल अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज होगी जो रिकॉर्ड होगी कॉस्ट अकाउंट में, दैट इज योर स्टॉक रिलेटेड ऑल द आइटम्स. स्टॉक रिलेटेड एडजस्टमेंट्स जो भी है वो सारी कॉस्ट अकाउंटिंग में आएगी. सो बेसिकली इन द कॉस्ट अकाउंटिंग यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल योर इम्पर्सनल अकाउंट्स, दैट विल बी योर रियल अकाउंट एंड योर नॉमिनल अकाउंट्स. रियल अकाउंट में भी ओनली वन थिंग. इतना समझ में आया? When I say about a structure of recording the in the cost book, obviously आप सबसे पहले ये चीज आप दिमाग में बिठा लो, सबसे पहले आप जो बनाने वाले हो ना यहाँ पर, वो कॉस्ट शीट बनता है. The very first thing which is prepared in the costing will be a cost sheet. फिर वहां से आप उसको जर्नलाइज करोगे, फिर लेजर बनाओगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओगे और फिर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओगे. तो हमें बेसिकली हमारे पोर्शन में किसके बारे में पढ़ना है, हमें कॉस्ट शीट तो बनाई हुई हमें मिल जाएगी,
हमें उसको जर्नलाइज करना है, फिर लेजर में पोस्ट करके ट्रायल बैलेंस बनाना। सो हमें ये वाले चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री बेस्ड फ्रॉम द कॉस्ट शीट, देन हमें उसको पोस्ट करना है लेजर अकाउंट्स में, एंड फिर ऑन फ्रॉम दैट बेसिस वी हैव टू जस्ट प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस. So over here your accounting will be divided into a two parts. Now which are these two parts? When I say about the accounting is divided over here the two parts, तो यहाँ पर आप बनाओगे आपके मेन लेजर्स और सब्सिडरी लेजर्स. अगेन आई एम रिपीटिंग, आप नॉन इंटीग्रेटेड में क्या बनाने वाले हो? हियर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ मेन लेजर्स एंड अ सब्सिडरी लेजर्स. तो अब हम ये सारे लेजर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, so tell me class, which two ledgers you are going to study over here? Main ledgers and subsidiary ledgers. So when I say about a main ledgers, ठीक है, when I say about a, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, when I say about a main ledgers, your main ledgers मतलब only and only it comprises of your stock ledgers. Stock अभी बताया. When I say about a main ledgers, I basically mean only of a stock ledgers. ठीक है, अब स्टॉक लेजर्स एज आई टोल्ड यू कि इसका जो बेस है वो क्या है? कॉस्ट शीट है. तो आप मुझे ये बताओ आपके स्टॉक लेजर्स क्या क्या है? जस्ट रिकॉल योर कॉस्ट शीट एंड जस्ट टेल मी व्हाट ऑल आर योर स्टॉक लेजर्स. ऐसे अबाउट योर स्टॉक लेजर्स, आपके स्टॉक लेजर्स कौन कौन सा है? सबसे पहला है आपका रॉ मटेरियल. कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हो? डायरेक्ट मटेरियल्स, उसमें रॉ मटेरियल रिकॉर्ड करते हो, फिर रिकॉर्ड करते हो WIP, और फिर रिकॉर्ड करते हो फिनिश गुड्स को. एंड मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया? योर मेन लेजर्स आर ओनली योर स्टॉक लेजर्स. स्टॉक लेजर्स मीन्स योर रॉ मटेरियल ऑल्सो कम्स into the picture, your WIP also comes into the picture, and your finished goods also come into the picture. समझ में आया? And as I told you कि here you are not recording any of the personal accounts and the real accounts. तो उसका रिप्लेसमेंट हमें कौन सा अकाउंट करके देने वाला है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को आप बोलोगे प्रिंसिपल लेजर. Which is your principal ledger? Principal ledger is general ledger adjustment account. उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GLA, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. और यू कैन से द जनरल लेजर, इसका दूसरा नाम है नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट, और यू कैन इवन से इट इज अ कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. सॉरी क्लास, here I have made a mistake. So basically main ledgers only comprises of your stock ledgers and your principal ledger. तो stock ledgers में raw material आ गया, WIP आ गया और finished goods आ गया. principal ledger की जब बात करते हैं तो principal ledger में आपका आ जाएगा only general ledger adjustment. हम ये सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे, डोंट वरी. नाउ व्हेन आई से अबाउट अ सब्सिडरी लेजर्स, लेट्स अगेन रिकॉल योर कॉस्ट शीट. ठीक है, लेट्स अगेन रिकॉल योर कॉस्ट शीट फॉर दिस पर्पस. अब देखो, एज आई टोल्ड यू स्टॉक लेजर्स मीन्स सबसे पहले रॉ मटेरियल विल कम, then WIP will come, and then the finished goods will be coming. Now when I say about the subsidiary ledger starting with your, अब डायरेक्ट मटेरियल, फिर क्या लिखते हो? डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हो. अब स्टॉक लेजर्स तो सारे हो गए मेन लेजर्स में, तो सब्सिडरी लेजर्स में सबसे पहला क्या आएगा? डायरेक्ट वेजेस, और यू कैन से डायरेक्ट लेबर.
फर्स्ट, सो डायरेक्ट वेजेस अकाउंट बनेगा यहाँ पर। और देखो, सिंस यू आर स्टडिंग ओवर हियर द कॉस्ट कंट्रोल्स, तो यहाँ पर आपको द वर्ड यू हैव टू एड द कंट्रोल अकाउंट्स, लेजर कंट्रोल अकाउंट, द वर्ड विल बी एडेड ओवर हियर। व्हाई? बिकॉज व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स। सो जो भी आप अकाउंट बनाओगे उसमें कौन सा वर्ड एक्स्ट्रा यूज करोगे? लेजर कंट्रोल अकाउंट्स विल बी द वर्ड विच विल बी यूज्ड एक्स्ट्रा। सो मैं आपको सिर्फ इजी वे में क्या बता रही हूँ कि आप कॉस्ट शीट को याद करो और इजीली आपको अकाउंट्स याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो व्हेन आई से अबाउट अ सब्सिडरी लेजर, द फर्स्ट वन विल बी योर वेज कंट्रोल अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। फिर वेजेस के बाद क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। देन next is work overheads, or you can say factory overheads. So the third account which you are going to prepare in the subsidiary ledger will be your factory overheads ledger control account. Then उसके बाद आपका आएगा office and administrative overheads. So fourth will be administrative overheads ledger control account. After administrative overheads, you have a selling and distribution. So the fifth will be selling and distribution ledger control account. फिर क्या आता है? cost of sales. So here we don't use the word ledger control. Here we will use only the cost of the sales account. फिर क्या आता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए जब आप कॉस्ट में प्रॉफिट करते हो तो आपको बनाना होता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये प्रॉफिट से आप बनाओगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड द लास्ट वन इज योर सेल्स। तो लास्ट अकाउंट विल बी द सेल्स अकाउंट। सो दिस मेनी अकाउंट्स यू हैव टू प्रिपेयर। अब तुम लोग बोलोगे कैसे याद करना है, तो मैं सिर्फ तुम लोगों को ये बताऊंगी, यू जस्ट रिकॉल द फॉर्मेट ऑफ अ कॉस्ट शीट एंड अकॉर्डिंगली आपको सारे अकाउंट्स के हेडिंग्स याद हो जाएंगे। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। और जो भी लेजर्स है हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, मेन लेजर्स एंड द सब्सिडरी लेजर्स। मेन लेजर्स कंप्राइजेस ओनली ऑफ योर स्टॉक लेजर्स, जिसमें रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स विल कम। Principal ledger, as I told you, we do not record the nominal account and the we do not record the personal account and the real account. So for that जो भी adjustment होगा तो it will be done through a general ledger adjustment account. Then when I came to a subsidiary ledger, I just told you कि आप यहाँ से हमने देखो रॉ मटेरियल तो डायरेक्ट मटेरियल्स तो ऑलरेडी चले गए इन द मेन लेजर्स, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले बनेगा वेज कंट्रोल अकाउंट, सेकेंड बनेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसके बाद बनेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर कंट्रोल अकाउंट, देन कॉस्ट ऑफ द सेल्स अकाउंट, प्रॉफिट है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द लास्ट वन विल बी योर सेल्स अकाउंट. This is how, if you recall your cost sheet, this is how you will be able to recall even your accounts as well. So what we are going to do in the next class, हम ना इसका डिटेल में पढ़ेंगे कि ये अकाउंट्स क्या है, कैसे जर्नल एंट्री आती है, कैसे हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. So in the next class we will study all these things in the detail.